सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरणाई। कोट ब्रह्मंडां दे मालक, जुगो जोगी अटल शब्दा अवतार, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी दे विच जुड़मिल बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज आपां सारे शहीदां दे इस पवित्र स्थान ते जुड़मिल बैठ के सोडी सुल्तान पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। श्री गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश माता दया कौर जी, जिन्होंने माता खेम कौर जी भी कहते सन, तिन्हां दी कुख तो सत्कारयोग पिता बाबा हरदास जी तिन्हां दे गृह विखे अजकल पाकिस्तान लाहौर शहर विखे जो चूना मंडी वाला पावन स्थान है, उस पवित्र स्थान ते नानक शाही संमत 65 बिक्रमी संमत 1581 ईसवी सन 1534 वीरवार वाले दिन कतक वधी दूज नूं अमृत वेले महाराज जी ने अवतार धारण किया। जिस वक्त श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी का पावन प्रकाश होया, तो संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडां वाले महापुरखा ने गुरु रामदास महाराज जी के अवतार पुरब की कथा करदियाँ सरवण करवाया, जो दास ने उन्होंने रसना तो सुनिया कि सवा पैर के तड़के गुरु साहब का जद प्रकाश होया, कादर की कुदरत ने इन्नी खुशी मनाई
कि जो रावी दरिया सी वो दुध का भर के वगिया। पता उदों लगा जिस वक्त ਜਿਹੜੇ साधु संत ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਟੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਨ, ਅਰ ਤੁਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸਨ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਲ ਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਸਨੌੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਨੌੜ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਏ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
चौंक दे विच चूना मंडी वाले चौंक दे विच आके खड़ गए। खड़े खड़ोते प्रभु का सिमरन कर रहे हैं तो खुद भगवान वाहिगुरु जी साधु का रूप धार के आए। आके आख्या पुरखा सानू भुख लगी है, कुछ सानू छका। महाराज कहन लगे मेरे पास तो घुंगणियाँ ही हैं, जे आप जी घुंगणियाँ छकना पसंद करते हो तो मैं तुहानू घुंगणियाँ दे दिंदा। पहले दिन घुंगणियाँ वेचण आए, रुपया एक नहीं प्राप्त किया, वेचियाँ नहीं, सुचियाँ घुंगणियाँ। तो खुद भगवान आप आ गए मंगण वास्ते। कहंदे लो जी एक बुक भरिया, कहंदे लो जी झोली करो, झोली विच पाता। कहन लगे पुरखा सानू भुख ज़्यादा लगी है, इन्नियां घुंगणियां नाल साडी भुख नहीं उतरेगी। महाराज ने दूजा बुक भरिया तो वह भी उन्हां महात्मा की झोली पा दिता। कहन लगे पुरखा सानू भुख ज़्यादा लगी है, सानू होर घुंगणियां चाहीदियां ने। गुरु महाराज जी ने तीजा बुक भरिया तो वह भी साधु की झोली पा दिता। बड़ा भोला सुभाव से कुछ नहीं सोचिया। कहन लगे पुरखा सानू भुख इन्नी लगी है कि ये जिन्नियां भी घुंगणियां जे तू सानू सारियां दे देवें, ये छक के असीं प्रसन्न हो सकते हाँ, क्योंकि बड़े दिन हो गए प्रशादा नहीं छकिया तो भुख बड़ी प्रबल लगी है, सारियां घुंगणियां नाल साडी भुख उतरूगी। महाराज ने शाबा फड़िया, पूरे का पूरा शाबा ही उन्होंने महात्मा की झोली में ढेरी कर दिता। वो साधु बड़े प्रसन्न होए, आख्या पुरखा तेरा दिता होया दान वधे फुले, रिधियां सिधियां परमात्मा तेरे बरकतां पावे, हर जुगां तक तेरा नाम अमर रहे। बड़ियां ही असीसां दित्तियां। असीसां दे के वो साधु महात्मा चले गए। कई जिहड़े प्रेमी हैं विद्वान सज्जन ने वो श्री गुरु रामदास जी महाराज का नाम भाई जेठा जी दसदे ने। भाई जेठा जी बार बार जद भी वो कथा सुनाते ने वो गुरमुख प्यारे भाई जेठा जी नाम करके, क्योंकि किताबां 'च भी यही लिखिया हुंदा। वो इस तरह बार बार उचारते ने। पर गुरु प्यारी साध संगत जीओ जेठ नाम हुंदा वड्डे दा। 12वां दे विच गुरु पंजवें पातशाह जी का बचन है, हर जेठ जुड़न दा लोड़ीए जिस अगे सब निवन। साडी माझे की बोली दे विच जिहड़ा पति का वड्डा भरा होवे उन्होंने जेठ कहिंदे ने, छोटे नूं देवर कहिंदे ने। सो जेठ नाम है वड्डे दा। श्री गुरु रामदास जी क्योंकि इकलौते सन, कोई इन्हां दा भैण भाई नहीं सीगा ते वड्डे ही सी। एक ताए दा पुत्र सी संहारी मल, तो प्यार दे नाल जेठा कह भी दिंदे होणगे, पर महाराज का नाम जेठा नहीं सी। क्योंकि असीं गुरबाणी तो सोझी लैनी है, गुरबाणी तो प्रकाश लैना। जिहड़ा इतिहास है उहदी गवाही गुरबाणी विचों प्राप्त करनी है। जे गुरु रामदास महाराज का नाम भाई जेठा जी प्रसिद्ध हुंदा, जेठा वो भावें कहिंदे होणगे भी वड्डे हन जेठा हन, जेठे पुत ने, मतलब पहले साहिबजादे हन, ते पर नाम नहीं सी जेठा। नाम शुरू तो ही गुरु रामदास साहिब जी सी। जे जेठा नाम हुंदा ते जिहड़े सवैये ने पट्टा ने उचारण कीते उहदे विच भाई जेठा नाम आ जाना सी। क्योंकि लहने तरिउन छत सिर गुरसिफती अमृत पीवदै, जिहड़ी राय बलवंड सत्ते डोम दी रामकली दी तीसरी वार है, उहदे विच श्री गुरु अंगद देव महाराज जी का भाई लहना नाम आया है, क्योंकि उन्हां दा नाम लहना सी। गुर अंगद गुरअंग ते गंगो जान तरंग उठाया,
गुरु अंगद देव जी तो गुरु नानक साहब ने अपने अंगां नाल सुहा के उन्होंने अंगद बनाया। पहला तो लहना सन, आख्या आ भाई लहना तू लैना तो असी देना। जफी पा के जद मुर्दा खाण की परख दे विच गुरु साहब जी पूरे उतरे तो गुरु महाराज ने गलवकड़ी पा के आप दे अंगां नाल सुहा के ते नाम अंगद दिता। आख्या कि तुसीं साडा रूप हो। जिस तरह गंगा विचों लहर उठदी है, लहर भी उही गंगा है, जैसी गंगा का पानी उसे लहर का, उस तरह का जल। इउं जोत ओह जुगत साई सहकाया फेल पलटी है। सो सवैयां दे विच भी लहना अखर आया है, पर जेठा नाम किते नहीं आया। सो छोटी उम्र तो ही गुरु महाराज का नाम श्री गुरु रामदास साहब जी सी। जद हुण घुंगणियां साधु नूं छकातियां, सोचिया मना हुण की करिए। वो बाद में चेता आया भी माँ तो कहिंदी सी घुंगणियां वेच के पैसे वट के लियाने ने, पैसा तो आपां कोई प्राप्त किया ही नहीं। घुंगणियां तो उं ही साधु नूं देतियां। जे हुण आपां घर गए तो माँ पुछूगी भी एडी जल्दी किवें आ गए, क्योंकि इन्नियां घुंगणियां इन्नी छेती तो वेच नहीं सकदियां। फिर पैसे पुछणगे, माता जी का मन दुखी होएगा। आप इउं करदे हां, कुछ होर प्रबंध करदे हां। वो इन्ने चिर नूं अजे सोच रहे सन कुदरत भगवान दी, जिन्हों महाराज ने आप दे चरनां दे विच संगत बख्शनी होवे। साध संगत जीओ ओदी मदद करता है। जिहदी भगवान मदद करे, सब तो पहला वो अपने साधु संतां नूं संगत नूं मिलाउंदा है। रब सीधा नहीं आउंदा, संतां नूं मिलाउंदा है। कहिंदे ने गुरबाणी का फैसला है, पार ब्रह्म हुआ सहाई। जिहदी वाहिगुरु हैल्प करे, मदद करे तरन वास्ते, कथा कीर्तन सुखदाई। सब तो पहला उन्होंने या कीर्तन बख्शिश करदा कि वह पहला कथा सुने, कीर्तन सुने। जिन्हों मिलना उसकी सोझी तो होनी चाहिए है भी वह किस तरह का है, वो गुण कैसे ने। जे बंदे बारे पता ही नहीं, वह ना ही नहीं आपां नूं पता, वो सुभाअ का नहीं पता, जिन्हों कहते हैं इंट्रोडक्शन, तो फिर आपां मिल के करांगे भी की, पता ही नहीं, पहचान ही नहीं है। मिलन तो पहला जे पहचान हो जाए तो मिलन का जिहड़ा आनंद है वो कुछ वखरा ही हुंदा। जे मिले तो बाद होवे तो तां भी लागे खड़ा बंदा दसदा, हुण खुद आप तां दसूगा नहीं। रहो विचार। सो जिन्हों परमात्मा ने तारना होवे, जिहदी मदद दे विच होवे, सब तो पहला संगत दे विच मिलदा है। पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। ते संगत दे विचों बाणी सुनाउंदा है, कथा सुनाउंदा, कीर्तन सुनाउंदा। जिसनों बख्श लै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै। जिन्हों वाहिगुरु ने बख्शिश करनी हुंदी है, समझ लो कि बंदा बख्श दिता परमात्मा ने, उन्होंने आप दा जस करन दी दात बख्शिश करदा कि वह महिमा करे, वडियाई करे परमात्मा दी, वो बख्शिया जाता है। सो इसलिए किरपा करे जिस पार ब्रह्म, जिहदे ते परमात्मा किरपा करता है, होवे साधु संग। साधु नाम है श्रेष्ठ सतगुरां दा। सतगुरां तो पहला नाम है संगत दा। रब दे प्यार वाले साधु उन्हां दे नाल मिलाउंदा है। आकार सेवा वाले बाबे, कोई भी चला जाए उन्होंने नहीं पुछना, महापुरखा किसी ने पुछना भी तू केस रखे ने या तू नशा तो नहीं वरतदा, कोई रहत है, बिल्कुल नहीं। कहना फड़ टोकरा, आ बिनू फड़ ते आ कुड़ती पा ते चल सतनाम वाहिगुरू, जो आया सो प्रमाण। हौली हौली सेवा करदियां, संतां दी संगत करदियां, फिर अपने आप ही गुरु घर की सोझी आउंदी, बंदा मर्यादा विच आउंदा। तो साधुआं दा काम है किसी आने बहाने इंसान नूं गुरु घर नाल जोड़ देना।
नंद सिंह जी महापुरख बाबा ब्रह्म ਗਿਆਨੀ नानकसर साहिब वाले, सो जिन्हां दा पूर्णमाशी ਨੂੰ जन्म दिहाड़ा मनाया गया। इन्हां ने श्री सुखमनी साहिब जी की संप्रदा चलाई कि जिहड़ा श्री सुखमनी साहिब दे विच हाज़री भरेगा वो वाहिगुरू नाल जुड़ जाएगा। कार सेवा वाले महापुरख सेवा द्वारा संगत नूं जोड़दे ने। पिंडां वाले महापुरखा ने कथा सुना के बाबा रणधीर सिंह जी अखंड कीर्तनीय वाले गुरमुख प्यारे, इन्हां कीर्तन सुना के संगतां नूं रब नाल जोड़िया। सो पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। किरपा करे जिस पार ब्रह्म, होवै साधु संग। ज्यों ज्यों ओह वधाई है, त्यों त्यों हरसिओ रंग। जिवें जिवें भी संगत भी समा वधाई जाए, तिवें तिवें प्रभु दे नाल प्रेम पैदा हुंदा है। महाराज अजे सोच रहे सन कि आपां की करिए, घर तां हुण जाना बनदा नहीं। माता जी गुस्से होणगे क्योंकि पैसे नहीं वट्टे, कुंगड़ियां दान कर दित्तियां। इन्ने चिर नूं ढोलकी चिमटे खड़कदे नज़र आए। पिछा भौं के वेखिया, बड़ी सोहनी संगत कीर्तन करदी तुरी आ रही है। सतनाम वाहिगुरू गुरबाणी दे शब्दां दा कीर्तन। सो बाणी दे विच ताकत है, ये बख्शिश है। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। ये वाहिगुरू जी जद आप जी ने आप दी प्यारी साध संगत विच मिलाया, तो असी संगत विच मिल के आप जी दी बाणी नूं सरवण कीता। आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सतगुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन करके जो बड़े तेज प्रतापी, सो उन्हां दे दर्शन करके फिर मन आनंद बागो बाग हो गया। ये संगत की कृपा दे नाल ही सब कुछ प्राप्त होया। इंज संगत कीर्तन करदी नजरी आई, लागों दी लंघी, मन शांत हो गया। एक गुरमुख प्यारे ने पूछया बांह तो फड़ के, कहंदे भाई तुसी कौन हो ते कीर्तन काहदा कर रहे हो? कहंदे असीं गुरु नानक साहिब दे सिख हां ते गुरबाणी दा कीर्तन कर रहे हैं। कित्थे चले हो? आपां श्री गोइंदवाल साहिब चले हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का तीजा स्वरूप श्री गुरु अमरदास साहिब जी उत्थे संगतां दी कल्याण कर रहे ने, उन्हां दे दर्शन करन चले आ। नाले बौली साहिब दी सेवा चल रही है, सेवा करांगे, कुछ समा सफल होएगा। कहंदे मैनूं ही नाल लै चलोगे? कहंदे हाँ भाई चल पो नाल, कोई ना नहीं। घर बिना दस्सण तो ते संगत नाल हो तुरे। कीर्तन करदी संगत श्री गोइंदवाल साहिब पहुँचे। उत्थे गुरु जी के दर्शन करके मन बिल्कुल शांत हो गया। संगत वापस मुड़ आई तो श्री गुरु रामदास जी ने लाहौर दीयां संगतां नूं सुनेहा दिता। कहंदे गुरमुखो साडी माता जी नूं जाके दस देना, पिता जी नूं दस देना कि आपां गोइंदवाल साहिब आए हाँ, हुण साडा इत्थे मन लग गया है, अज तो बाद आपां घर नहीं आवांगे, इत्थे बौली साहिब की सेवा चल रही है, सेवा दे विच ही रहांगे, साडे घर जाके दस दिओ, फिक्र ना करन। संगतां ने आके दस दिता। सो उस दिन तो गुरु रामदास जी महाराज बड़े प्यार सत्कार दे सहित बौली साहिब की सेवा करन लग पे। सारी सारी रात श्री गुरु अमरदास महाराज के चरण घुटते रहना ते रात के 12 बजे तो बाद उठ खड़ोना। उठ के ते श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज का इशनान कराउणा ते वस्त्र बदलाउणे। उस तो बाद दिन चढ़े साध संगत जी मिस्त्री मजदूरां नूं काम ते लाउणा, कईयां बाल्टे सारिआं नूं कढ के देने। संगत दे सारे प्रबंध नूं सारी सेवा नूं आप हथीं करना।
फिर बौली साहब की जिहड़ी कार सेवा है मिट्टी पुट पुट के बाहर लिया के सुट्टनी। मैं जद भी श्री गोविंदवाल साहब जांदा तो हमेशा यही वेखदा रहिंदा, उपर तो जद हेठां नूं दर्शन पाईए तो एक बारी चंगा भला बंदा तगड़ा बंदा नौजवान भी सोची पै जांदा कि 84 पौड़ियां आपां हेठां किवें उतरांगे तो उतर के चढ़ांगे किवें, मिनट किन्ने लगणगे। मैं हमेशा ही सोचदा भी साडे लई तां महाराज ने पौड़ियां बना दित्तियां ते नाल रीलिंग लाई हुई है, पत्थर दीयां पौड़ियां बड़ियां सोहणियां ने, आपां बड़े आराम दे नाल हेठां उतर सकदे हां, उपर नूं चढ़ सकदे हां। जद गुरु रामदास महाराज जी सेवा करते होणगे वो तो पूरा खूह का खूह होऊगा, वो ढलान होएगी, पौड़ियां तो होणगियां नहीं, होणगियां भी तो कच्ची मिट्टी पानी दीयां छट्टां पै पै के वो भी गिल्ली हो जाती, मिट्टी भी गिल्ली होंदी। तो आपां तां खाली हेठां उतरदे हां ते खाली उपर नूं आउंदे हां, पर गुरु रामदास जी महाराज सिर उपर कारसे वाला टोकरा वेखो चुक के फिर एक फेरा नहीं पता नहीं दिन में किन्ने फेरे उपर नूं आउंदे होणगे। किन्नी महान सेवा है, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं लगातार किन्नी हेठां धरती पुट्टी हुई है। जब बावलीगढ़ टूटा तब चित्तौड़गढ़ छूटा, ये महाराज गुरु अमरदास जी ने बचन किए सन। वो हेठां जिहड़ा धरती के हेठां पानी है उहदे नाल वो मिली हुई है। बौली साहब उपर लोहे का जंगला लाया होया, हेठां बड़ी सख्त जमीन आ गई तो वो कड़ टुटे ना, संगतां सेवा करके हंभ गईयां। एक भाई मानक नाम का गुरसिख गुरु साहब ने हुक्म किया, भाई मानक आ गैंती फड़ ते तू थोड़ा जोर ला। उन्हें वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां इहो जी जोर नाल सेवा की कि बौली का कड़ टुट गया। जद कड़ टुटिया बाणी जिहड़ा पानी सी उहदा फ्लो इन्ना तेज उपर नूं आया कि संभलिया ना गया, एकदम पानी पानी हो गया। भाई मानक विचे पानी दे डुब गया, उहदी माँ बेचारी खड़ी रोए पिया। तो गुरु साहब दे कोल आई, गुरु अमरदास जी किसी नूं रोंदियां देख नहीं सन सकदे, तो महाराज ने बचन किया होया सी जब तईए ताप नाल किसी माई का पुत्र शांत हो गया सी, तो महाराज दे कन्नां दे विच चीख की आवाज़ सुनी। तो गुरु साहब ने माता नूं आख्या, माता चुप कर जा, कहंदी मेरा मुंडा मर गया, मां इनू जिउंदा करो। गुरु साहब कहन लगे दिन चढ़े जिउंदा कर देंगे, पर हुण सानू बाणी पढ़ लैण दे, नितनेम कर लैण दे, भजन बंदगी विच जुड़े हुए हाँ। वो चुप तां कर गई तो पर उहदा मन नहीं टिकिया। वो 2 मिनटां बाद फिर वो रोना शुरू करता। गुरु साहब गुस्से विच नहीं आए, कोई श्राप नहीं दिता कि माता ने साडा वचन नहीं मन्निया। बाहर आए, आपदे चरण का अंगूठा उस मुंडे दे सिर नूं ला के कहण लगे, उठ बई काका, तेरी माँ रो रही है, ये नाल उठ के घर नूं जा। वो वाहिगुरू वाहिगुरू करदा उठ खड़ा होया जी, आपदी माता नाल घर चला गया। फिर मां ने सोचिया भी नित बंदे मरनगे तो फिर सानू जिउंदे करने पैणगे, ये तो काम चंगा ना होया, रब दे भाणे विच दखल है। सतगुरु जी ने धर्मराज जी नूं 22 आर्डर रोक दिता भी खबरदार जे तू गोंदवाल साहिब च वड़िया, जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ हाँ गुरता गद्दी करते हाँ तू गोंदवाल साहिब च नहीं आउणा। कहंदा जी 7 बचन। महाराज ने प्रण किया कि जिन्ना चिर असीं गुरता गद्दी करांगे उन्ना चिर किसी माँ प्यो दे हुंदिआं कोई सपुत्र चढ़ाई नहीं करेगा। नौजवान पुत्र तां की मनना, कोई मनुख तां की पशु पंछी भी गोंदवाल साहिब दा नहीं सी मरिया। उस तो बाद भाई मानक डुब गया, माँ रोई तो महाराज कहन लगे, माता रोंदी क्यों? कहती जी मेरा पुत डुब गया, इनू कृपा करो, जिउंदा करो, कला कला पुत सीगा। आख्या भाई मानक तेरी माँ रो रही है, तू बाहर आ, तू किधर चला गया? इन्ना चिर थोड़ी नहाउण ते लाईदा, टुब्बा लाया तो बाहर आओ। सेवादार रौला पाउण लग पैंदे, बाहर आओ बई बाहर आओ।
ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ। ਜਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਸੋ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗਿਣ ਕੇ 84। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 84 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਦਰੋਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਜੇਠ ਚੜ੍ਹੇ, ਜੇਠ ਅਤੇ ਹਾੜ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘੇ ਦੇ ਹਨ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ। ਤੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜੇਠ ਜਦ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਾਂ 5 ਕੁ ਵਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਛਕਣਾ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਰੱਜ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਖਾ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 3 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਰਾਤ ਵਾਂਗਰ ਲਏ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ। ਤੋ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਸਾਬਣ ਸੁਬਣ ਲਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਟੋਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਖਾ ਲਵੇ। ਜਦ ਮਨ ਭਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ 1 ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ 'ਤੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣਾ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ। ਕਿਉਂ 84ਵੇਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤੇਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ 3 ਵਜੇ, ਕਈ 4 ਵਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਅਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 84 ਨਾ ਕੱਟੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ 'ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਢੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
तो गुरु रामदास जी खुद आप मिट्टी पुटते रहे। वो थड़ियां की साखी बड़ी प्रसिद्ध है कि श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे दो सपुत्रियां सी। एक सी बीबी दानी, वो सी वड्डी, छोटी सी बीबी भानी जिहड़ी महाराज गुरु रामदास जी नाल विआही होई सी। एक बार कहंदे गुरु साहब चबारा साहब च बैठे हेठां नूं तक रहे सी ते एकांत वेख के माता दया कौर जी जो गुरु अमरदास जी के घरों सन, वो गुरु साहब के नज़दीक आए। आख्या महाराज बीबी भानी जवान हो गई है, इन्हां लई कोई वर लभो। सच्चे पातशाह कहन लगे कि किस तरह का वर चाहिए? कहते जिस तरह के वो खड़े ने, वो कुदरती गुरु रामदास जी हेठां गली में खड़े सन। गुरु साहिबां वाल इशारा करके आख्या भी उस तरह का वर चाहिए। तो महाराज कहते उस तरह के तो उही रब ने बनाए ने, इन्हां वर्गा दुनिया च होर कोई नहीं बनाया। क्यों ना आपां इन्हां नूं आवाज़ मार के पुछ लैने आ। सेवक भेजिया, भाई बल्लू नूं आख्या कि जा वो पुरख नूं बुला के लिया। बुलाया, आख्या पुरखा तेरा नाम की है? कहंदे जी रामदास। तू कित्थों दा रहण वाला? कहंदे जी लाहौर दा। तेरे माँ प्यो कित्थे ने जे गल करनी होए? कहंदे जी चूना मंडी रहिंदे हन। ते मैं तो आपदे चरनां च काफ़ी चिर दा सेवा करदा। कहंदे जा घर जा ते आपदी माँ ते आपदे प्यो नूं बुला के लिया। महाराज नूं घर भेजिया, माँ प्यो बुलाया। साहिबा ने बचन किया, कहंदे साडी जो बीबी भानी है असीं तुहाडे साहिबजादे नाल इन्हां दा आनंद कारज शादी करनी चाहुंदे आ। माता पिता बड़े प्रसन्न होए। उन्हां दी हाज़री विच गुरु रामदास जी ने पूछा भी तुहाडा की मन है? कहंदे जिवें आप दा हुक्म होवे। तो आप दी सेवा पहला भी करते हैं, बाद विच भी करांगे, चरनां च निवास बख्शिओ जी। फिर महाराज कहंदे भी तुहाडा असीं आनंद कारज करना है। इंज श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने बीबी भानी का आनंद कारज आप दी हजूरी विच श्री गुरु रामदास जी नाल खुद आप किया। जो 40 पौड़ियाँ श्री आनंद साहिब दियां गुरु अमरदास महाराज ने विचारियां ने, वो बीबी भानी के आनंद कारजां तो पहलां उचारियां सन। जिस वक्त जो गुरु महाराज जी के घर पोतरे की दात प्राप्त हुई तो दासी ने आके महाराज नूं बेनती की कि आपदे घर पोतरा आया है, खुशी की खबर है। घर के परिवार के मैंबर कहिंदे ने उसका नाम रखो। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे कि उसका नाम है आनंद। साडे कोल लैके आओ। दासी महाराज दे कोल लैके आई। वो एक साधु हुंदा सी पुराने जन्म का, जो गुरु अमरदास जी के चरणों में हाजिर होया। उन्हें बड़ा तप किया ते गुरु महाराज नूं परमात्मा जान के बेनती करन लगा। कहंदे सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो। सतगुरु अमरदास महाराज कहन लगे कैसी कृपा चाहिए है? कहंदा जी मुक्ति का दान बख्शो, मैनू जमन मरण तो मुक्त करो। गुरु साहब कहन लगे महात्मा जी मुक्ति जुगती नाल मिलती है, हुण तुहाडी उम्र पूरी हो गई है, तुसीं नवां जन्म गुरुद्वारे लो, गुरु घर विच नवां जन्म लैके आओ, फिर गुरु वाले बनो, बाणी पढ़ो, नाम जपो, सेवा करो, फिर श्री गुरु नानक देव जी तुहानूं मुक्त कर देणगे। वो साधु ही बच्चा बन के आया, पोतरा बन के। महाराज नूं पता सीगा वेख के, ते साधु दे दर्शन करके महाराज बड़े प्रसन्न होए। वो भी बालक रूप च गुरु साहब के दर्शन करके बड़ा खुश होया। महाराज ने वो साधु नूं आनंद देण वास्ते जीवन मुक्ति का जिन्ना चिर जिउंदे रहना, मरिया तो बाद तां मुक्ति किन देखी। गुरु घर दे विच जीवन मुक्ति का ही आनंद है, जिउंदियां ही। सतगुरु जी ने उसदा नाम आनंद रखिया ते वो बच्चे के नाम ते साधु के नाम ते आनंद साहिब नामे 40 पौड़ियां गुरबाणी उचारण की।
गुरबाणी उचारण करके बकायदा कागज़ ते लिख के आप दे गड़वई भाई बल्लू नूं दित्ती। आख्या भाई बल्लू ढोल फड़ ते कोठे ते चढ़ जा, ढोल ते डगे नाल उच्ची उच्ची बोल के गुरबाणी दा कीर्तन सुना। सारे गोंदवाल साहब नूं पता चले कि गुरु अमरदास जी के घर पोतरे का जन्म होया। सतगुरु जी ने आप दे पोतरे के जन्म की खुशी आनंद साहब की बाणी का कीर्तन करके मनाई। तुसीं देखो आपां किवें मनाउंदे आ, बच्चों का बर्थडे किवें मनाउंदे आ, तुहानूं ज़्यादा पता है। जे श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के जन्म की खुशी मनाई तो गरीबां दे भले वास्ते उन्हां दिनां दे विच गरीब बंदे नूं कोई आपदे खूह ते नहीं सी चढ़न दिंदा। पिंडां दे विच अजे भी तुसीं वेखदे हो जातां दे हिसाब नाल खूहां दीयां मंडियां पईयां होईयां ने। आ साडा खूह है, आ तुहाडा खूह है, फलाणे दा खूह है, जातां दे हिसाब नाल। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 6 हलटां वाला खूह तैयार किया, जिहदे विच एकदम 6 हलटां इक्को वार चलन और इन्ना पानी का फ्लो उत्थे पैंदा, खाल भर के पानी का वगदा। गड्डियां दे गड्डे लोग ड्रमां दे ड्रम पानी भर के उत्थों लैके जाते। कोई नावे धोवे, सरोवर बनाया, कोई छके, जिस तरह मर्जी उस जल नूं वरते। ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के अवतार की खुशी मनाई श्री गुरु अर्जन देव जी ने छियाटा साहब विखे वो 6 हलटां वाला खूह चला के। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना, अनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी। मैं बचन सुना रहा सी कि जद बीबी भानी जी का आनंद कारज श्री गुरु रामदास महाराज ने किया, वाहिगुरु गुरु अमरदास जी ने किया गुरु रामदास नाल, तां 40 पौड़ियां आनंद साहब का पाठ करके किया। पाठ आनंद साहब का होया ते परिक्रमा गुरु अमरदास जी दियां कीतियां गुरु रामदास ते बीबी भानी जी ने। फिर जद खुद गुरु रामदास जी महाराज जी ने लामा बाणी उचारण की है, एक गरीब सिख की लड़की का आनंद कारज गुरु रामदास जी ने खुद लावा पढ़ के आप किया ते परिक्रमा गुरु रामदास जी दियां होईयां। फिर झबाल नगर विखे श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप दी सपुत्री बीबी वीरू का आनंद कारज लावा बाणी पढ़ के किया, परिक्रमा गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज साहब जी दियां होईयां। उस तो सब तो पहला श्री गुरु नानक देव जी तो मूल मंत्र की मर्यादा सी। श्री गुरु नानक देव जी ने बटाला नगर कंध साहब विखे मूल मंत्र चंदन की चौंकी ते विराजमान करके ते उहदे दुआले परिक्रमा कीतियां ते मूल मंत्र की मर्यादा आरंभ हुई। फिर तीजे पातशाह जी तो आनंद साहब पढ़ के लावां की मर्यादा आरंभ हुई। फिर चौथे पातशाह जी ने जब लावां उचार दित्तियां फिर लावां बाणी पढ़ के ते जिहड़े हाजिर गुरु साहब जी उन्हां दीयां परिक्रमा करके विआह की मर्यादा प्रारंभ हुई। इंज गुरु साहब सच्चे पातशाह ने कृपा की। आनंद कारजां तो बाद भी शरधा भावना दे नाल दोवें जी गुरु महाराज की सेवा करते। बीबी भानी जी की बाबत एक बहुत प्रसिद्ध साखी है कि बीबी भानी जी गुरु साहब जी के उठण तो पहला पानी गर्म करते, पहला आप इशनान करते, फिर महाराज का जल गर्म करते। गर्म जल के नाल क्योंकि गुरु अमरदास जी की उम्र 100 साल तो टप चुकी सी, बजुर्ग शरीर होने करके आप खुद अपने हथीं महाराज नूं संभाल के ते फट्टी ते बिठाल के बीबी भानी जी आप दे हत्थां नाल गर्म पानी दे नाल महाराज का इशनान कराउंदे। जिहड़े उन्हां दे उतारे हुए वस्त्र हुंदे आप साਂਭਦੇ ते धोते हुए वस्त्र उन्हां नूं पहना के ते सत्कार दे सहित उन्हां नूं उन्हां दे निज कमरे दे विच पहुँचाउंदे। उन्हां दे वस्त्र धोंदे, उन्हां दा प्रशादा पकाउंदे। गुरुद्वारा चबारा साहब जी किते आप गए होवो गोंदवाल साहब, ये गुरुद्वारा बौली साहब है, एक चबारा साहब है शहर के अंदर। उत्थे बीबी भानी का चुल्हा चौंका है। आए गए साधु महात्मा की संगतां की प्रसाद पानी नाल सेवा करते, गुरु महाराज की सेवा में अठे पैर हाजिर रहिंदे। इधरले पासे बौली साहब की कार सेवा में गुरु रामदास जी हाजिर रहिंदे। मैं बेनती कर रहा सी
कि गुरु अमरदास महाराज दियाँ 2 सपुत्रियाँ सी। वड्डी सी बीबी दानी, उन्हां दे पति का नाम सी भाई रामा जी। शरधा उन्हां विच भी बड़ी सी, प्यार उन्हां विच भी बहुत सी, सेवा उन्हां दी भी बड़ी महान। पर जो गुरु रामदास महाराज की सेवा है वो अपनी जगह ते बहुत महान है। थड़ियां की साखी बौली साहब बारे बड़ी प्रसिद्ध है कि जिस वक्त गुरु अमरदास महाराज जी सेवा करवा रहे सन तो साहबा ने गुरता गद्दी की परख करनी चाहिए कि वेखदे आ गुरता गद्दी के योग भाई रामा जी हैं कि गुरु रामदास महाराज हैं। साहब कहन लगे गुरमुखो साढ़े बैठन वास्ते थड़ा बनाओ तो 2 थड़े चाहिए ने। बौली साहब के दोवें पासे सज्जे पासे ते खब्बे पासे। साडा चित्त करे सज्जे पासे बैठिए, साडा चित्त करे खब्बे पासे बैठिए। 2 थड़े बनाओ साढ़े बैठन वास्ते। भाई रामा जी ते गुरु रामदास जी थड़े बनाने शुरू किए तो महाराज आए, कहते जी थड़े तैयार ने। गुरु साहब कहन लगे कि थड़े चंगे नहीं बने, जान बुझ के उन्होंने नुक्स कढ़ता भी ये आ नुक्स है, ओ नुक्स है, थड़िया नूं ढा दिओ तो अज आराम करो, कल नूं फिर थड़े बनाओ। अगले दिन फिर थड़े बनवाए। उन्हें बड़ी मेहनत नाल थड़े तैयार किए। मारे कहते भी साढ़े को बहना इन्हां ते औखा है, जान बुझ के उच्चे ने नीवे ने इस तरह महाराज ने नुक्स कढ़ता। आख्या भी इन्हों ढा दिओ तो कल नूं फिर थड़े बनाओ। जो तीजी बार आख्या तो भाई रामा जी कुछ क नाराज़ हो गए भी महाराज कैसा वचन कर रहे हैं, थड़े इन्हां दे पसंद ही नहीं आते, नुक्स तो कोई है नहीं। कहते महाराज ये सही तो हैं, कहते भी सानू पसंद नहीं, साढ़े मुताबिक बनाओ। ਜਾਂ तीजी बार बनाए, तीजी बार फिर आख्या भी थड़े ढा दिओ। वो भाई रामा जी तो बहुते गुस्से च आ गए, कहते महाराज आपकी उम्र कुछ वडेरी होने करके जिस तरह तुसीं कहिंदे हो बनाने तो असीं उस तरह ही आ, तुहानूं चेता भुल जाता। तो महाराज भी मैं तो थड़ा ढाउणा नहीं है, इन्नी मेहनत ना बनाई दे ने, तुसीं कदर ही नहीं पाउंदे। श्री गुरु रामदास जी ने आख्या भी पुरखा तू थड़ा ढा दे। मैं क्या भी थड़े चंगे नहीं बने, कहती 7 बचन जी। जदों थड़ा ढाउण लगे महाराज ने बंद फड़ लिया, कहते शाबाश बस इन्ना वेखना सीगा। इउं गुरु महाराज ने संगत नूं परख करके दस दिता कि गुरु रामदास जी महाराज गुरु बनने के योग ने। जद बहुता वड्डा कंपीटीशन होवे तां साध संगत जी नौकरी वास्ते या किसी भी काम वास्ते पहलां तां बच्चा पढ़ाई करदा, वो पढ़ाई की सारी मैरिट वेखी जाती है भी परसेंटेज कितनी है, वो परसेंटेज के हिसाब के नाल बच्चे सिलैक्ट किए जाते हैं। फिर उन्हों का रिटन टैसट लिया जाता। पहला बच्चा पढ़ाई चों पास होया, सर्टिफिकेट ले, फिर गांह परसेंटेज का मुकाबला हो गया, वो चों निकलिया, फिर रिटन टैसट हो गया, फिर उन्होंने परसेंटेज वक्री बनाती। ये तरीका हुंदा छाणा मारन का, योग्यता परखण का। तो जब उस टैसट की परसेंटेज तो टॉप मारिया फिर इंटरव्यू रख दी। जे इंटरव्यू विचों निकल गया तो जे पोस्ट मान लो 1 है या 2 है, बंदे 10 आ गए, उस तो बाद फिर इस तरीके का परख की जाती है भी ये धीरज किन्नी है, ये आजार शक्ति किन्नी है, ये किन्नी क गल किसी की सार सकता। सो गुरु घर दे विच खास करके अजर शक्ति की परख की जाती। कहो नानक अजर जिन जरिया तिसी ही कहो बन आवत। जिहदे विच अजर शक्ति है उन्होंने ही गुरता गद्दी बन आउंदी है। इउं गुरु रामदास जी महाराज गुरु अमरदास जी परीक्षा विचों पास होए। इधर बीबी भानी जी एक बार इशनान कराउंदियां बड़ी साखी प्रसिद्ध है कि वह पावा टुट गया पीढ़ी का, तो इशनान कराउंदियां भी बचन आउंदा ते चौंकड़ा मार के जिथे महाराज बैठते उदों दे भी बचन आउंदा।
तो वो बीबी जी ने आप दा हथ तली वाला पासा जिहड़ा सीगा उपरले पासे ते हेठला हथ हेठां पासे ला के ते बैलेंस बनाया कि गुरु महाराज किते डोल ना जान, शरीर बिरध है ते सट ना लगे। तो वो जिहड़ा पावा टुटा होया सी उहदा किल बीबी जी की तली विच खुभ गया। बीबियां दा शरीर होने करके वो खून रुक गया, सारी बांह नीली हो गई तो खून की धारा वह तुरी। जब गुरु अमरदास महाराज ने देखिया, आख्या बीबी ये खून कित्थों आ रहा, नज़र मारी तो तू दा हाथ थले दे। उस वक्त गुरु जी रब रब करदे उठ खड़े। आख्या ओहो तू दसिया क्यों नहीं, ये की कीता? महाराज इन्हें प्रसन्न होया, आख्या बीबी धन है तू। धीआं पुत्रां दी माँ प्यो ते शरधा नहीं हुंदी, सत्त बगाने की भावें होवे, कहंदे घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। धन है तू बीबी, गुरता गद्दी ते गुरु नानक साहब दा रूप धार के, सो रूप जान के अकाल पुरख दा रूप जान के तू शरधा कीती है गुरता गद्दी ते। असीं तेरे ते बड़े प्रसन्न हैं, गुरु नानक साहब दे घर दा दरवाजा खुल गया, बख्शिश दा जिहड़ी बख्शिश चाहे तैनूं लै दिंदा। कहंदी महाराज नामदान बख्शो, कहंदे नहीं कुछ ना कुछ मंग। कहंदी जी एक हाथ जोड़ के बेनती है कि पहले सतगुरु जी साहिबजादियां नूं छड्ड के ते गुरता गद्दी दूसरिਆਂ नूं दे दिंदे रहे। हुण मेरी बेनती है भी घर दी घर विच रह जाए, आप जी गुरता गद्दी मेरे पति गुरु रामदास महाराज जी नूं बख्शिश करियो। आख्या बीबी ये बहुत वड्डी दात है, ये भारी पंड है, इनू संभालना औखा है। बीबी जी दे सिर उपर महाराज ने हथ रखिया, गुरु अमरदास जी ने उन्होंने हथ रख के ते सारी फिल्म दिखाई A to Z, गुरु रामदास जी तो लैके ते गुरु गोबिंद सिंह तक, माता गुजरी समेत छोटे साहिबजादियां दी शहीदी, गुरु तेग बहादुर दी दिल्ली चांदनी चौंक च सीस लथन वाली घटना, सारी फिल्म की तरह वड्डे साहिबजादे चमकौर की जंग च। बेनती की भी सोढियां दी कुल च गुरता गद्दी बख्शो। महाराज कहंदे भी ये सौखी गल नहीं, ये पंड हल्की नहीं, बड़ी वड्डी जिम्मेवारी तू लै रही है, ये गल सोच ला। हुण प्रवान कहंदी जी सरबत दे भले वास्ते मेरी कुल परोपकार करन हित जो आप दा भाणा होगा सिर मत्थे मन्नूगी, आप कृपा करो बख्शिश करो। महाराज कहंदे जा बीबी तेनों गुरता गद्दी दिती तेरी कुल नूं, तू सानू सेवा करके प्रसन्न किया, पर ए बीबी गुरता गद्दी तो मैं दे दूँगा तो पर तेरे पति की उम्र तो रब ने थोड़ी लिखी है, इन्हें तो थोड़े दिनों तक चढ़ाई कर जाना, फिर तू की करेंगी। बीबी भानी ने वेखो ये अरदास नहीं की भी मेरे पति की उम्र लंबी कर दियो, पति की उम्र भी नहीं मंगी। आख्या महाराज मैं आप दे पानी विच प्रसन्न रह के पहला भी गुरुद्वारे दी रोटियां पकाउंदियां ते बाद विच भी मैं चिट्टे बस्तर धारण करके, गुरु साहब जी लिबास चिट्टा ही पाउंदे सी, आप दी हजूरी च रंग बिरंगे बस्तर नहीं सन आउण दिंदे, एक माया ना मत्था नहीं सी टकाउंदे, एक छोटा अणदाड़िया बच्चा महाराज दे कमरे च नहीं सी आ सकदा, एक बीबी नहीं सी उत्थे आ सकदी, जिन्हें आउणा चिट्टे बस्तर पाओ, सांदगी सुभाਅ सीगा। ते जब बीबी जी ने इस तरह बेनती की भी मैं आपदे साधु संतां दी संगत की सेवा निभाऊँगी, जिस तरह पहला आपदे भाणे च आख्या महाराज ने, बीबी तू धन है जिन्हें महाराज का भाणा मन्निया, असी बड़ी जिंदगी जीव लई, बड़ी दुनिया वेख लई, बड़ा सब कुछ रज गए सेवा करके सिमरन करके, हुण साडा चित्त करदा कि आपां दुनिया तो कूच कर जाइए। साडी उम्र परमात्मा ने 111 साल लिख के भेजी सी, 105 साल असीं भोग लई है। लै बीबी तेरे पति नूं गुरता गद्दी भी दित्ती ते जिहड़ी 6.5 साल उम्र साडी बाकी रहिंदी है वो भी तेरे पति नूं बख्शिश कीती। इहो महाराज गुरता गद्दी दी बख्शिश करके ते आख्या भी लो सब कुछ ही तुहानूं बख्शिया ते हुण तुसीं आपदे नाम ते नवा नगर वसाओ। खुद आप गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहब तो जिथे अमृतसर साहब नगर वसाउणा है, चक गुरु का
उस स्थान ते दुख भंजनी बेरी हेठ आए। भाई पारो की कोड़ी ते चढ़ के दुख भंजनी बेरी वाला अस्थान गुरु रामदास जी ने बांह तो फड़ के दिखाया भी पुरखा इत्थे गुरु नानक साहब गुरु अंगद देव जी के चरण पए ने, ये सतयुग तो अस्थान चलिया आउंदा, ये साडा अस्थान है। फिर गुरु अमरदास जी के भी चरण पै गए तो आप महाराज ने मोड़ी कढ़ी, गुर सच्चा बद्धा थे हो रखवाले गुर दिते, आख्या थे नगर वसा, इत्थे बेरी दे हेठ जिहड़ी छपड़ी है इनू सरोवर का रूप दे, विच हरमंदर साहब की सेवा करो तो कथा कीर्तन चले। इस स्थान दे हुण तुसीं रह के गुरु का लंगर चलाओ। हुण गोंदवाल साहब नहीं रहना, साडे बच्चे तुहाडे नाल ईरखा करनगे, इत्थे रह के आनंद मंगल माणो। तो महाराज ने कच्चे रूप च सरोवर की सेवा करवाई तो संतोख सर की कच्चे रूप च सेवा करवाई। फिर गुरु अर्जन साहब ने हुक्म किया, सरोवर पक्का करवाया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर साहब की रचना, संतोख सर की सेवा, तरन तारण साहब, ये गुरु अर्जन साहब ने सेवावां निभाइयां। इंज धन गुरु रामदास महाराज के उपर श्री गुरु अमरदास जी की बख्शिश हुई तो महाराज गुरता गति बख्श के आप ज्योति जोत समा गए। ऐसे गुरु रामदास सो बैठा सोढ़ी पातशाहो, रामदास सतगुरु कहावै, पूर्ण ताल खटाया, अमृतसर विच जोत जगावै। भाई गुरदास जी का बचन है। अज उन्हों का पावन गुरपुरब है। सचखंड हरमंदर साहब उत्थे जलाओ लगा होया है तो बेअंत फुलों के नाल महाराज की सजावट हुई है। बेअंत संगतां नतमस्तक हो रही लाइव ते कीर्तन चल रहा। अज आपां भी इत्थे शहीदां दे पवित्र स्थान ते बैठ के महाराज नूं याद किया। गुरु जी के चरणों च बेनती है कि महाराज साडी हाज़री इत्थे बैठियां दी उत्थे अमृतसर आपदे दर प्रवान करन जी। जिथे भी याद करो उत्थे महाराज हाजिर ने। सद हजूर हाजिर है नाजर कते ना भयो दुराई। रागी शब्द पढ़े सी रामदास सरोवर नहाते, सब उतरे पाप कमाते। इहो जिहा सरोवर है बेअंत वरन। सो समूह संगतां नूं गुरु घर वल्लों गुरु रामदास जी के अवतार पुरब की लख लख बधाई होवे जी। भुलां चुका क्षमा करो, अगे तो समत बख्शो। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।